Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in today's session, we are going to start a new chapter number 7 of NCERT book, class 9th, that is triangles. Okay, so today's session is totally basic parts of triangles which we have been studying from primary section as well as onwards primary till 8th standard, right? Okay, so first we will recall some basic concepts related to triangles, then we will move forward. Okay, so as the name of this chapter is triangles, so first question arises here, what is the triangle? Triangle क्या होता है? Okay, so triangle, if we see this word triangle, triangle, tri means 3 and angles you know well, means any closed figure that is made of 3 angles, right? अब ये एंगल्स किससे आपके बन रहे हैं? रेज से, और रेज क्या है आपकी? अ पार्ट ऑफ लाइन. ओके, तो इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है, और यू कैन से ट्राइंगल इज अ पॉलीगन दैट इज मेड एंटायरली with 3 line segments. Okay, let's see its figure. A polygon with 3 sides is called triangle. Okay, so this is what? This is a triangle because it has 3 line segment. First one this, second and third. Okay, so triangle is a, and you can see this is a closed figure. Okay, if we take like this figure, this figure is also having 3 line segment, but it's not closed, it's not a polygon. Okay, so triangle is a closed figure entirely made up of 3 line segments. Okay, now these line segments making angles. See here, this is first angle made by these 2 sides, this is second angle, and this one is third angle. Okay, so proper definition of a triangle is what? A closed figure that has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Okay, if we name this triangle as A, B, C. Okay, so this figure is a closed figure that has 3 sides. Sides क्या है इसमें? देखिए, AB, BC and AC. These 3 line segments are making the sides of this closed figure. Okay, and there are 3 angles here. So angles क्या क्या है यहाँ पर? Angle A, angle B and angle C. Okay, and 3 vertices. Vertices means where these line segments are meeting, means these points. These are the vertices of this triangle. Okay, vertices जहाँ पर आपके एंगल फॉर्म होते हैं, मतलब जहाँ पर 2 रेज आपकी मीट कर रही हूँ, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हूँ, दैट इज द वर्टेक्स. सो हियर देयर आर 3 वर्टिसेस. ओके, सो वर्टिसेस आपके क्या हो गए? ए, बी एंड सी. वर्टिसेस आर नथिंग बट द पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर मीटिंग. ओके, सो अ ट्राइंगल is a closed figure that has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. So here is the concept of 3. That is why we are naming this closed figure as triangle.
ओके। अब आप कहेंगे कि मैम ट्राइंगल, 3 एंगल वाला, तो एंगल आपका किससे बन रहा है? इन साइड से ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें साइड्स भी इंक्लूड होंगी, और साइड्स जहाँ मीट कर रही हैं वो क्या है? पॉइंट्स आपके वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पर 3 का ही कॉन्सेप्ट है, 3 वर्टेसेस होंगे, 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स। नाउ इन प्रीवियस क्लासेस we also have studied many properties related to triangles. In previous chapter also we have studied about triangles. The angle sum property of triangle means there are 3 angles here in the triangle, so the sum of these 3 angles is always 180. That is the angle sum property of a triangle. Okay, we also have studied one more part of this triangle that exists in outer part of triangle, that is exterior angle. Okay, if suppose we extend or we produced any side of this triangle, then we get an exterior angle that is always equal to the sum of its opposite interior angles. So these are some properties we have studied in 8th standard and as well as in 9th standard in previous chapter. Okay, so main जो पार्ट है इस चैप्टर का जो हमें इस स्टैंडर्ड में पढ़ना है, दैट इज द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, एंड वी आल्सो हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स इन 7th स्टैंडर्ड, राइट, एंड आल्सो हैव स्टडीड 4 criteria for congruency of triangles. But in this class we will study these congruency rules by axioms and theorems. Okay, so let's see. Okay, so now main topic of this chapter that we will have to study in detail in this standard, that is congruency of triangles. Congruency. So what is the meaning of this congruency word? It is made up from congruent. 2 figures are such that their shape as well as their size is same, then those figures will be called as congruent figures. Okay, congruent figures का मतलब क्या है कि ऐसे कोई 2 फिगर या 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है. ठीक है, मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स और दोज फिगर्स आर इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, आइदर वी टेक इट्स साइज or its shape. Okay, so see here, in my hands there are 2 angles, right? You can see these 2 angles have same shape, that is circular, means these 2 angles are in the shape of circle. Okay, now if we talk about their size, size means here these are in circular form, so size will be determined by its radius. Okay, its radius. If we have 2 angles here, अगर इन 2 एंगल्स की साइज की बात कर रहे हैं तो साइज इसका किस चीज़ से डिटरमाइन होगा? सर्कल है तो रेडियस से डिटरमाइन. सर्कल में कोई लेंथ ब्रेथ तो होती नहीं है, क्या होती है? रेडियस होती है. रेडियस डिसाइड्स द साइज ऑफ सर्कल. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर है, दूसरे एंगल की भी 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स, ये दोनों सर्कल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्यों? इनका शेप क्या है? सर्कुलर है. इनका जो साइज है मीन्स जो इनकी रेडियस है दैट इज ऑल्सो सेम. सो दीज 2 फिगर्स विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, वन मोर थिंग इन दिस, अगर सपोज इस बैंगल को उठाकर मैं इस बी बैंगल के ऊपर रख देती हूँ, इफ आई पुट दिस बैंगल ए ऑन दिस बैंगल बी, दे विल कवर ईच अदर कंप्लीटली. क्या करेंगे? एक दूसरे को हाइड कर लेंगी. ठीक है, जैसे कि देखिए इन 2 बैंगल्स की मैं बात कर रही हूँ. अब इस बैंगल को मैं इस दूसरी बैंगल के ऊपर रख रही हूँ. देखिए, क्या आपको पीछे वाली बैंगल दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है. क्यों?
ये जो फर्स्ट वन है सेकंड वन को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, कंप्लीटली हाइड कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को दोनों ही कवर कर रही हैं. दैट इज वाई दीज टू एंगल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, इफ आई टेक टू स्क्वायर्स, सपोज दिस स्क्वायर A and this square is B. Its side is 3 centimeter and it has size 4 centimeter. Now tell me, are these two squares congruent figures? Congruent squares? No. Why? Their shape is same because both are in the shape of square. दोनों ही क्या है? स्क्वायर है. बट उनका साइज क्या है? डिफरेंट है. एक बड़ा है, एक की साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 4 मीन्स दिस ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर इन साइज. तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है. ठीक है, अगर मैं दूसरा एक स्क्वायर लेती हूँ सेम 3 सेंटीमीटर साइड का, then these two will be congruent figure because their size, that is the side here. साइज का मतलब क्या है? साइज हर एक फिगर का क्या होगा? जो उसका मेजरिंग पैरामीटर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. ठीक है, सर्कल की बात कर रहे हैं तो रेडियस से उसके साइज को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उसकी साइड से हम डिटरमाइन करें. अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी मेजरिंग फैक्टर्स क्या आ जाते हैं? लेंथ एंड ब्रेथ. तो वहाँ पर हम लेंथ और ब्रेथ से डिसाइड करेंगे उसके साइज को, राइट. तो यहाँ पर क्या है? ए और सी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज देयर शेप एज वेल एज देयर साइज इज सेम. ठीक है, अगर हम ए को सी के ऊपर रखें या सी को ए के ऊपर रखें, दे विल कंप्लीटली हाइड ईच अदर. तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, अब जो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स मीन्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे. तो आपको पता है ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं. तो यहाँ पर अगर एक एंगल या कोई भी एक साइड वेरी करती है तो कॉन्ग्रुएंसी आपकी क्या हो जाती है? इम्पॉसिबल है. ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो ईजी है. स्क्वायर में क्या है? हर एक साइड क्या होगी? सेम मेजरमेंट की है. सर्कल की बात करते हैं तो क्या है? रेडियस ही है, वहाँ पर एक ही मेजरिंग फैक्टर है. बट अगर हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल्स में 3 आपके एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं और 3 साइड्स. तो तीनों साइड्स के आपकी वेरी हो सकती है, एंगल्स भी वेरी हो सकते हैं. सो देयर इज प्लेंटी ऑफ वेराइटी इन ट्राइंगल्स. Okay, so what the factors here are to decide the congruency of triangles that we will study in detail in this chapter. Okay. So if we talk about the congruent triangles, means any two triangles which has same shape and size, then they will be called as congruent triangles. Okay. और यहाँ पर जो shape है वो क्या है? triangular है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर. ठीक है, अब इन 2 ट्राइंगल्स को हमें डिसाइड करना है कि आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं. तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? एक तो शेप सेम होना चाहिए. तो आपको दिखाई पड़ रहा है शेप क्या है? दोनों के सेम है. अब क्या इनके साइज भी सेम है? मीन्स यहाँ पर इनकी मेजरिंग जो पैरामीटर्स हैं क्या वो सेम हैं? तो आपको पता है ट्राइंगल्स में मेज़र करने वाली कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक तो साइड्स हैं और एक एंगल्स है. तो इन्हीं से हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले हम एंगल्स की बात करते हैं. एंगल ए 70 डिग्री. इस ट्राइंगल में एंगल पी आपका 70 दे रखा है. ओके, एंगल बी इज हियर 60. तो दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू एंगल आपका 60 दे रखा है. थर्ड सी एंगल आपको 50 दे रखा है. तो आर आपको 50 दे रखा है. इसका मतलब यहाँ पर 3 जो डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल के क्या हैं? इक्वल हैं. ओके, मीन्स यहाँ पर क्या एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के. एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के.
एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। मीन्स ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? पी होगा, ठीक है। उसी तरीके से एंगल बी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम किस चीज़ को? एंगल्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। 60 यहाँ, तो ये दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग हो गए। इसी तरीके से यहाँ ये एंगल 50 का है, ये भी 50, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं साइड्स की। तो ए बी आपका कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू 4 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब ये साइड आपको इस ट्राइंगल की ये साइड दे रखी है, दोनों ही इक्वल, ठीक है। ऐसे ही बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर भी आपका 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए सी इज 5 सेंटीमीटर, देन पी आर इज 5 सेंटीमीटर, ओके। सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, and AC is equals to PR, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है आपस में वो क्या है? PQ। BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR। एंड AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PR, ओके। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हैं? इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो इसलिए ये ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। These two triangles are congruent. Why? Their corresponding sides are equal as well as their corresponding angles equal. Okay? अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, करस्पॉन्डेंस ऑर्डर। यहाँ पर 3 आपके वर्टेक्स भी हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? पी होगा। ऐसे ही बी का करस्पॉन्डिंग क्यू होगा, सी का करस्पॉन्डिंग आर होगा, ओके। मीन्स ए इज करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डेंस का सिंबल है, ठीक है। ये करस्पॉन्डेंस का सिंबल है। ए इज करस्पॉन्डेड टू पी, B is corresponding to Q and C is corresponded to R, ओके। A का करस्पॉन्डेंस P से है, B का Q से एंड C का R से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। ट्राइंगल ABC क्या है? ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज देयर साइज एज वेल एज देयर शेप इज इक्वल, ओके। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल का साइज है वो कौन डिसाइड करता है? एंगल्स एंड साइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ABC ट्राइंगल को उठाकर हम PQR ट्राइंगल पर रख दें, तो देखिए A वर्टेक्स आपका P को कवर करेगा, B वर्टेक्स Q को कवर करेगा, C वर्टेक्स R को कवर करेगा। इसी तरीके से एंगल A विल कवर टू एंगल P, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है? सेम है। सिमिलरली एंगल B विल कवर टू एंगल Q, एंगल C will cover to angle R, okay, and see here the sides, AB will lie on PQ, BC will lie on QR and AC will lie on PR. Means these two triangles, if put on one another, they will cover each other completely. That's why they will be congruent, okay? इसीलिए ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स का हर एक एंगल एक दूसरे को कवर कर रहा है, हर एक साइड एक दूसरे को कवर कर रही है, ठीक है। तो triangle ABC is congruent to triangle PQR. So for this congruency, congruent word, there is a symbol. We know that if we want to write this statement symbolically, then we will write it as
ABC is, this is sign of equal and this zigzag sign. This is the sign or symbol for this congruent. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle PQR. ओके, तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि करस्पॉन्डेंस ऑर्डर. ऑर्डर देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्या ये करेक्ट है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ. इसका मतलब इससे, इस स्टेटमेंट से क्या निकल के आ रहा है कि A का करस्पॉन्डेंस पार्ट क्या है, P, B का करस्पॉन्डिंग पार्ट R, सिमिलरली C का करस्पॉन्डिंग पार्ट Q. ठीक है, A का करस्पॉन्डिंग P. ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है. A बट X P, एंगल A क्या है 70, P भी 70 है, तो ये तो ठीक है. नाउ सी, एंगल B इज करस्पॉन्डिंग टू R. दिस एंगल B is corresponding to this angle. Is 60 is equal to 50? No. एंगल B और एंगल क्या है, एंगल R क्या है, डिफरेंट है. मीन्स दीज आर नॉट द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. ओके, यहाँ पर B का करस्पॉन्डिंग पार्ट R नहीं है, क्या है, Q है. ठीक है, ऐसे ही C का Q है क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट, C का Q, एक 60 एक 50 नहीं है इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं है. इसका मतलब अगर हम इस फिगर की बात कर रहे हैं और इस तरीके से हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल ABC का जो करस्पॉन्डेंस ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, PQR होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ से अब देखिए A बट X P का करस्पॉन्डिंग है, B Q का, C R का. ठीक है, और देखिए अगर हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड्स आपकी दो लेटर से बनेगी, दो अल्फ़ाबेट से. तो अगर हम साइड AB की बात करें तो इस ट्राइंगल में AB की करस्पॉन्डिंग क्या होगी, PQ होगी. देखिए AB की करस्पॉन्डिंग PQ है. ऐसे ही अगर हम BC की बात करें तो BC की करस्पॉन्डिंग क्या होगी, QR. BC इज करस्पॉन्डिंग टू QR. करेक्ट है. ऐसे ही अगर हम थर्ड साइड CA इस ऑर्डर में ले रहे हैं, CA, तो यहाँ पर भी हमें इसी ऑर्डर में लेना है, RP, CA, RP, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करस्पॉन्डेंस ऑर्डर भी याद रखना है कि कौन सा पार्ट इक्वल दे रखा है, कौन सा वर्टेक्स किसको कवर करेगा, कौन सी साइड किसके ऊपर लाई करेगी, कौन सा एंगल किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है. दैट विल डिसाइड द करस्पॉन्डेंस ऑर्डर टू डू टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो यहाँ पर ट्राइंगल के केस में ये चीज़ हमें केयरफुली चेक करनी है और करस्पॉन्डेंस ऑर्डर के फॉर्मेट में ही हमें ये कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये एंगल 50 कर रही हूँ और ये एंगल 60 कर रही हूँ, अब देखिए इस फिगर में मैंने क्या किया, चेंज कर दिया. एंगल Q 50 का कर दिया, एंगल R 60 का कर दिया. अब देखिए क्या ये करेक्ट है. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. यहाँ से देखिए A का करस्पॉन्डिंग क्या है, P. ओके, B का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, B पर देखिए कितना 60 डिग्री का एंगल,
तो इस ट्राइंगल में 60 कहाँ बन रहा है, आर पर। इसका मतलब अब यहाँ पर बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सिमिलरली सी का क्या होगा, 50 है, 50 यहाँ पर क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी का करस्पॉन्डिंग आर है, सी का करस्पॉन्डिंग क्यू है। ठीक है, अगर हम साइड्स की बात करें सो ए बी किसके, पी आर के इक्वल होगी। तो देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर है, पी आर क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू पी आर। सिमिलरली बी सी किसके, आर क्यू के, बी सी आर क्यू के, करेक्ट है। If we talk about AC means PQ, that will correspond to PQ. AC PQ equal है। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर जो करस्पॉन्डेंस का है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले वाले फिगर्स में ABC is congruent to triangle PQR. Now in this case ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ट्राइंगल्स को रोटेट करके भी देखना है कि कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सी साइड्स इक्वल है, कौन सा वर्टेक्स किस पर लाई करेगा। दैट विल डिसाइड द करस्पॉन्डेंस ऑर्डर। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं मीन्स उनका शेप और साइज सेम है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ओके, और उनके वर्टिसेस में 1 का करस्पॉन्डेंस सेट हो रहा है, तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दे विल बी इक्वल। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर दो ट्राइंगल्स का शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CPCT। CPCT ये वर्ड हमने पहले भी सुन रखा है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस CPCT का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग parts, P for parts, corresponding parts of congruent triangles. Okay, so CPCT stand for corresponding, C for corresponding, P for parts, C for congruent, T for triangles, means corresponding parts of congruent triangles. ओके, अगर दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पर, तो वहाँ पर हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट वी विल राइट इन शॉर्ट। सो दैट्स ऑल for today's session in which we have learned about triangles and congruent figures, then congruent triangles. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, can ask on the comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the congruency criteria of triangles in detail. Till then, keep watching my channel. Thank you.